आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मेक चाय नॉट वॉर पे। राजीव सत्याल पिछले 10 सालों से लोगों को हंसाते आ रहे हैं। अपनी इस हॉबी को पैशन और प्रोफेशन बनाने से पहले उन्होंने अपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की नौकरी भी छोड़ दी। हरी कोंडाबोलू भी अमेरिका में मानवाधिकार से जुड़े संस्था में कार्यरत थे। कॉमेडी करना कभी इनका मेन एम नहीं था, लेकिन आज अमेरिका में अपनी कॉमेडी के बूते इन्होंने काफी नाम कमाया है। अपने इस सफर को और ठहाकों से भरी अपनी जिंदगी के बारे में हमसे काफी कुछ शेयर किया इन्होंने। हमारे साथ ही अभी वर्ल्ड फेमस 2 स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव सत्याल और हरी कोंडाबोलू। इन दोनों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन ये यहाँ पटना में है दर्शकों को हंसाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि ये किस तरह से पटना के दर्शकों को हंसाने का प्लान लेकर आए हैं। How you expect to entertain Patnaites? I understood some of what you were saying in Hindi. It will be difficult if we don't speak Hindi, but we'll do the best we can. By going slowly, and speaking to the audience directly, we hope that they'll understand what we're saying. So there's a level of being able to not only process it, but then also find it funny, relate it back. They're going to be back translating it. So if you slow down, I think that will help. Well, I know that all Patnaites are not going to be the same. People have different interests, and some will be more fluent in English than others. So even though I don't speak anything other than English, there'll be the opportunity to make some people laugh. And hopefully there'll be enough universal experiences in what I'm saying where more people will laugh over the course of the time. तो इनके अनुसार इन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन ये अपने प्रोनाउंसिएशन में कुछ स्लो डाउन करेंगे या फिर एटलीस्ट ये कुछ ऐसा यूनिवर्सल अपील लाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में। और एटलीस्ट इन्हें इतना तो विश्वास है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है और वो रिलेट कर पाएंगे इन्हें, या फिर अगर ट्रांसलेशन का मदद ये लें तो फिर इनके जोक्स और इनके गैग्स जो होते हैं वो लोगों को पसंद आएंगे। स्टैंड अप कॉमेडी में इनका आना कैसा हुआ और उन्हें करियर कैसे बनाया अपने स्टैंड अप कॉमेडी में? How did I choose a career in stand-up comedy? See, I got that one, so there you go. I think maybe the audience should do my jokes and then I can laugh, since I understand some of it. I chose it because I wanted to make people laugh. I think if the two things I enjoyed doing were making people laugh and speaking in front of people. So if you combine those two, that's stand-up comedy. That's how. Hari, was doing stand-up comedy was your plan for future since you were a child? No, it certainly wasn't. Both my parents are alive, and they would not let that happen right from the beginning. I mean, they've always been supportive, but I don't think I was raised necessarily to just immediately jump into something without having a solid education. So my education was focused on politics and human rights, and my education was focused on politics and human rights, and my work was human rights organizing, working with immigrants and refugees, and that's what I wanted to do. And I did comedy at night. It kind of came to me. It wasn't the plan. I got lucky and I got some breaks and was able to do it for a living. How would you explain what stand-up comedy is in the simplest of the terms? It is one person standing on a stage with a microphone, expressing him or herself, and getting laughter from the audience that is listening to him or her. And do you need to do a lot of homework before giving your presentation? Certainly. When a comic sounds the most at ease and is the calmest and the loosest, and it seems as if they're making it up, usually it takes years of practice and writing for it to look as if it's not rehearsed. I mean, that's all comics. I think even if you have a natural ability to be comfortable on stage and perform, if it's going to be consistently good every time, or at least good enough to get through each show, you need to do a lot of work before you do that. Okay. तो ये है हमारे साथ राजीव सत्याल। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये खुद पर जोक्स मारते हैं और लोगों को हंसाते हैं। Is that true that you make most of your comic stuffs are on yourself? Yes, that is true. I believe that most of my jokes are personal in nature. I think that is one difference between American and Indian
And what is your area of interest when you go for stand-up comedy? I like big topics, to talk about racism or sexism or politics or history. Like, I like big topics and discussing them in a funny way. So you try to find comedy in serious stuff. Yeah, I think for me there's a greater reward if you do make people laugh based on those things. That's where, you know, for me the biggest pleasure comes from people being able to laugh at something that's painful because they find some greater meaning in it. तो ये है हमारे साथ राजीव सत्याल और हरी कोंडा बालू। इन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन हम उनसे एक सवाल और पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा शब्द हिंदी का जो उन्हें आता हो या उन्होंने सीखा हो। Namaste. Something funny. अरे वाह. I like to say अरे वाह. मेरे नाम हरी कोंडा बालू है। 1, 2, 3, 4, 5. That's just go. I can do the numbers to 10. अरे यार, we don't know. अरे यार, इनके मुंह से एक हिंदी शब्द जो निकला है वो है अरे यार। ठीक है, कोई बात नहीं। ये पटना में आए हैं पटना को हंसाने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडी इनका मेन प्लान नहीं था चाइल्डहुड से, लेकिन ये आज स्टैंड अप कॉमेडी में है। अपना नाम इन्होंने बनाया है और ये निकल पड़े हैं दुनिया को हंसाने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज केडी के साथ हर्षिता, पटना मॉर्निंग। राजीव सत्याल और हरी कोंडा बालू दोनों का जन्म और पालन पोषण अमेरिका में हुआ है, लेकिन इनका रिश्ता पंजाब और आंध्र प्रदेश से भी है। ये मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन इन्हें हिंदी नहीं आती। तीसरे हास्य कलाकार अजहर उस्मान का ताल्लुक बिहार के आरा जिले से है। वो पहले भी इंडिया में परफॉर्म कर चुके हैं। इस ग्रुप से जुड़े वो ही एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हिंदी आती है। हिंदी बोलने और समझने के अलावा भी कई और खासियत है इस शख्सियत में। हमारे साथ है स्टैंड अप कॉमेडियन अजहर उस्मान। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वो अपने बारे में आपको किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कभी नहीं करता हूँ, इसलिए कि अपने आप को नहीं देख सकता हूँ। इंसान अपने अंदर होता है हमेशा हमेशा, और दूसरे लोगों से देख सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख सकता। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और आपके बारे में ये बात कहा जाता है कि आप खुद को सिटीजन ऑफ द ग्लोब कहते हैं। आप किसी एक देश के नागरिक नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में ये इंसानियत के दौर से अगर देखा जाए तो हम सब एक्चुअली एक हैं। हम एक दुनिया के हो गए। पूरी दुनिया, देखिए आप ये बना रही हैं, अगर ये इंटरनेट पर चला जाए तो पूरी दुनिया के लोग यूट्यूब से इसको देख सकते हैं, हर कोने में। अजीब बात है, सोचने की बात है। तो वाकई मैं इस देश का तो हूँ, देसी बंदा हूँ, और अमेरिका से मेरे पैदाइश है तो वहाँ से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में कि आई बिलोंग टू द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड। आप अमेरिकन हैं, आप इंडियन हैं, लेकिन आप तो हम ये मान लें कि आप दोनों देश के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक हो सकते हैं अच्छे रिश्ते के लिए। अगर भगवान अल्लाह ताला इसको कबूल माने तो ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब हो सकते हैं। असल में हमें चाहिए सिर्फ कि दिल के अंदर हम मोहब्बत पैदा करें और एक दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ रहें। ये जो भी इंसान ये करता है, ये एक बहुत ही मजबूत लिंक बन सकता है लोगों के दरमियान। हम भारत में राजू श्रीवास्तव को स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी फिर भी अभी एक उभरता हुआ नाम है, कॉमेडी का एक जॉनर है। तो अगर आपको बताना हो कि स्टैंड अप कॉमेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बस एक यूनिवर्सल चीज़ है। जैसे अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, एक बच्चा चिल्ला रहा है, पूरी दुनिया के बच्चे चिल्लाते हैं। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। ह्यूमर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो मेरा मैसेज, मेरा जहन, मेरा सोच, मेरा पूरी ज़िंदगी जो है बेसिकली इसी बात पे मेरे दिल में ये बैठ गई है ये बात। तो मैं अपने आर्ट के तौर से इस जो मेरे दिल में है, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। और एक बात जो हमने नोटिस किया, आपने हिंदुस्तानियों के बारे में एक सबसे खास बात बताई कि वो हमेशा लेट होते हैं। आप कभी स्कूल में लेट हुए? जी हाँ, ये मेरे जीन्स में है, चूँकि मैं इंडियन बंदा हूँ, मेरा ताल्लुक इसी देश से है। तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारे खून में, हमारे जो बदन में, हमारी पूरी हकीकत के अंदर ये रियलिटी है कि हम हमेशा लेट ही रहते हैं। कॉमेडियन का काम बेसिकली यही होता है कि जो बात सब लोग सोच रहे होते हैं लेकिन बोलते नहीं है, उसको कॉमेडियन बोल देता है।
और वो कैसे करता है, वो क्यों दिलों में लगता है, क्यों लोगों को खुशी होती है और वो एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए कि ये सोच, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो इंसान को सबको ये आइडिया आता है, वो उस सबकॉन्शियस के अंदर जाकर उस सोच को, उस बात को खींच के कॉन्शियस माइंड को दिखाता है। और ये एक अच्छा जोक, ये जोक का हकीकत है और इस वजह से लोग कॉमेडियन को पसंद करते हैं। और कॉमेडी में आना कैसे हुआ? कॉमेडी को क्या आप करियर बनाना चाहते थे? नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कॉमेडी एक करियर हो सकता है। मैंने असल में लॉ पढ़ा था अमेरिका में और लॉयर बनकर मैंने इंटरनेट बिजनेस भी एक शुरू किया था, लॉ कॉलेज के दरमियान में था। उसके बाद आगे जाकर मैं कॉमेडी शुरू किया जस्ट एज अ हॉबी, चूँकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन पता चला कि लोगों को बहुत उसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। ऑफ कोर्स 9/11 की वजह से ख़ास तौर से लोगों को मुसलमान कम्युनिटी के बारे में और मालूम करना चाहें। जाहिर सी बात है, ऐसे तालिबान देखने के चेहरा, उसामा बिन लादेन तो नहीं हूँ लेकिन मोटा उसामा हूँ, तो लोगों को जो है ये और भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद आगे जाके 2004 में मुझे लगा कि अगर मैं चाहूँ तो वाकई में कॉमेडी का करियर बना सकता हूँ। तो मैंने ये भी सोचा कि भाई कौन नहीं चाहेगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को हंसाने की मकसद हो जाए, और अगर मैं फेल भी करूँगा तो जाके मैं वापस लॉ प्रैक्टिस कर लूँगा। तो ये इस जहन से मैंने सोचा और फिर आगे जाकर 2004 में मैंने सब अपना बाकी सब काम बांध कर कॉमेडी पे मैं लग गया। और बिहार के कुछ पॉलिटिशियंस जिनकी आपको अदाएं बहुत भाती हो। लालू भाई के बारे में तो लोग बिल्कुल पीछे लग गए हैं बेचारे के। लालू प्रसाद साहब ने जो भी काम किया, मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स में फॉलो करता ही नहीं हूँ, मेरा कम इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। अमेरिकन पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे, इंडियन तो पॉलिटिक्स तो दूर की बात है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि लालू साहब ने काफ़ी शोर हंगामा लोगों ने मैं मिमिक्री करता है। लालू जी की जो आपको सबसे भाती हो, बोलने का कोई अंदाज? माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं करता मिमिक्री, ये मौकरी होता है एक्चुअली। और फिर मौकरी की वजह से अगर दिल के किसी में के दिल के में चोट हो तो ये मैं अपने सर के ऊपर नहीं चाहता हूँ। तो ये है हमारे साथ अजहर उस्मान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि हर जोक के पीछे एक अच्छी नीयत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज केडी के साथ हर्षिता, पटना मॉर्निंग। अजहर उस्मान को आप कैसे पुकारेंगे? अजहर उस्मान कहकर, लेकिन अमेरिकन्स कैसे इस नाम को करते हैं प्रोनाउंस, ये आप भी देखिए। अगर कोई फॉरेन नेम, एथनिक नेम कहलाता है, एथनिक नेम अगर अमेरिका में हो तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर मेरा नाम है लिख के AZHAR कोई घोड़े बंदी को दे दे, बेचारा परेशान हो जाता है। Ashmore? Sorry, man. Ishtar? I'm sorry. Is it Oscar? Can I just call you Oz? हमेशा नाम बदलने की तैयार। I'll just call you Oz. मैं तो नहीं करता हूँ कि बंदे का नाम है जॉन तो मैंने कहते हैं I'll just call you जाने जिगर। राजीव सत्याल, हरिकोंडा बोलू और अजहर उस्मान ने पहली बार पटना में परफॉर्म किया। पटना में भी ये पहला ऐसा मौका था जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो कैसा था कॉमेडी शो का नजारा और किस तरह का रिस्पांस मिला इस शो को पटना के लोगों से, ये आप भी देखिए। लोगों की ये लंबी कतार, दर्शकों से भरा ये हॉल और शुद्ध मनोरंजन की उम्मीद लगाए ये लोग इंतजार कर रहे हैं 3 अमेरिकी भारतीय हास्य कलाकारों का, जो इनके बीच पहली बार कॉमेडी करने वाले हैं। हम हैं अभी रविंद्र भवन में, जहां 3 हास्य कलाकार स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं। इस इंडियन अमेरिकन कॉमेडी शोकेस का नाम रखा गया है मेक चाय नॉट वॉर, और अमेरिका इस हास्य रस के जरिए भारत के साथ मीठे संबंध बनाने की कोशिश में है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस कॉमेडी शोकेस की एक झलक। मेक चाय नॉट वॉर, इस यूनिक नाम के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, ये हमने आप दर्शकों को तो बता दिया है, लेकिन यहाँ जो मौजूद ऑडियंस है वो क्या सोचती है, क्या रीजन है इस नाम के पीछे, आइए जानते हैं यहाँ मौजूद एक दर्शक से। क्या हो सकता है इस नाम?
मैम इससे यही हो सकता है, क्यों ना हम जो इतना वॉर हम कर रहे हैं, क्यों ना एक चाय मीटिंग से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो एक चाय के जरिए कोई भी रिश्ता सुधारा जा सकता है। मे बी मैम, बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग विल पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो शायद ये बहुत हद तक पहुंच चुके हैं कि इस नाम के पीछे का कारण क्या है। हमारे साथ एक और ऑडियंस मौजूद है, हम उनसे जानते हैं आप क्या सोचते हैं। It's peace and war. चाय मींस पीस। Peace. It's creating friendliness beyond barriers and boundaries. आपको क्या लगता है ये कॉमेडी शो के जरिए कितना हद तक ये सफल हो पाएगा? ये इनका Is the best medicine. So I think creating the feelings of happiness would certainly add to peace. तो ये कुछ व्यू पॉइंट्स है लोगों का कि इस यूनिक नाम के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ऑल इन ऑल ये पूरे जो लोग यहाँ मौजूद है हॉल में, वो इंतजार कर रहे हैं एक शुद्ध 100% एंटरटेनमेंट का। इन तीनों कॉमेडियन से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अब देखना ये है कि क्या ये तीनों कॉमेडियंस भारत खास करके पटना के दर्शकों का दिल जीतते हैं या नहीं। नमस्कार, सलाम अलैकुम। शो की शुरुआत की नॉर्थ इंडिया में यूएस एम्बेसी की कल्चरल ऑफिसर लीडिया बराजा ने। लीडिया ने वहां मौजूद दर्शकों को शो से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दी। हमें लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रपति बराक ओबामा और आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बात करते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन और बहुत गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, विकास, लेकिन उसके अलावा हमें भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि आम लोगों, जो इंडियन आम लोग जैसे आप लोग और अमेरिकी आम लोग जैसे में कि हमारे बीच में भी चर्चा होना चाहिए। तो कभी कभी हम अमेरिका से एक्सपर्ट्स इंडिया ले आते हैं, जिसमें शायद ये एक्सपर्ट शिक्षा में एक्सपर्ट है या प्रोफेसर है या राजनीति में एक्सपर्ट है। लेकिन आज बहुत खास बात है, क्योंकि आज के एक्सपर्ट हंसने में एक्सपर्ट है। आज का प्रोग्राम मेक चाय नॉट वॉर है, जिसमें 3 इंडियन अमेरिकन कॉमेडियंस आपको हंसाने कोशिश करेंगे। तो एक अमेरिकी महिला को हिंदी बोलते देख हॉल में मौजूद दर्शक बेहद खुश हुए और पूरा माहौल एक्साइटेड हो गया। लेकिन जरा सोचिए, जब सिर्फ एक हिंदी स्पीच ने एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई कर दिया, तो तब कैसा रहा होगा हॉल का नजारा जब कलाकारों ने लोगों के बीच रखी अपनी कॉमेडी। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।